नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यूनियर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा है आपके साथ और आपके साथ ही रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर 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 महादेव। हर महादेव। आप सबको गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, फ्रेंच में बोंसोir। प्रदीप जी, Aboriako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili, I tell you what, the kind of response we're getting from places like South Africa, people are watching the Maharashtra elections very, very carefully. I would have thought, because of the huge extent of Gujarati population, Gujarati Exactly, origin yes. population in South Africa, they'd be watching the Gujarat elections. But apparently, the Maharashtra elections are causing great interest even in places that you would least expect. Places like Namibia and places like South Africa, which is Entirely amazing. East African belt, where you talk about Kenya, you talk about Tanzania, Yes. you talk about South Africa. Everywhere you have such a huge population of Indians and Gujarati population. They're avidly watching what is happening. Yeah, I understand कि गुजरात के चुनाव होते हैं तो स्पेशली साउथ अफ्रीका में बहुत इंटरेस्ट होता है। सारे पटेल, मेहता, शाह सब लोग वहीं होते, देसाई। अब महाराष्ट्रियन इतने ज्यादा वहां पर है मुझे मालूम नहीं था। Very frankly, I didn't know. But we're getting they're very interesting. we're getting a lot of response from there. And of course, as you know, India has just won the T20 series against South Africa 3-1, and what a match yesterday. Oh God, that was amazing, absolutely amazing. Both Sanju Samson and Tilak Verma, they I don't think anybody's ever seen furious batting of that level ever. It's like fantastic. We won by 135 runs. Can you believe it? India wins at the Wanderers in Johannesburg, right in the heart of South Africa, by 135 runs, defeating South Africa in the T20 series. It was a 4-match series by 3-1. Fantastic. The youngsters are really left on their own. They can do wonders. That's right. They're working under no pressure. Go out there, play the best you can. Absolutely. And fearless batting. Absolutely. Yes. Furious and fearless. Quite amazing, really. Great. Absolutely great fun to watch. Just like it's great fun to watch what's been happening as far as the elections are concerned in Maharashtra. जबरदस्त हो रहा है सर, बहुत जबरदस्त हो रहा है मेरी समझ में। और मेरी समझ में जहां तक के महायुति का सवाल है, I think they have an edge now, very frankly, irrespective of whatever the MBA might say. I know this is not going to be a very, very popular statement, especially with regard to our friends in the Congress, NCP Sharad Pawar and of course Uddhav Thackeray Sena. लेकिन जो मोमेंटम था लोकसभा के आसपास, MBA के पास यानी इंडिया अलायंस के पास, वो उतना मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है अभी महाराष्ट्र में। प्रदीप जी, Exactly, sir. And भारतीय जनता पार्टी आगे है, बड़ी फोकस्ड है और एकनाथ शिंदे साहब जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। जी प्रदीप जी। So exactly, one thing है कि अगर 105 जो बीजेपी अपना जो seats won, if they retain that, That's it. they won the Game battle. over. They won the battle. Game over. Because Eknath Shinde definitely has the capacity to take around 25 से 30 सीट तो आराम से ले लेंगे और बाकी अजित पवार 8 से 10, even the least estimates हम पकड़ेंगे. It seems to be. But then, what happens if BJP doesn't get 105? Then there's a problem. If it gets stuck between 70 to 80 or 80 to 90. Or the way things used to be earlier, 50 to 60. Yes. Then we have a problem. But I don't see that happening. Now, after Sajjad Nomani has come in the picture, after Sajjad Nomani has come in the I picture, think सज्जाद नोमानी साहब उलेमा काउंसिल के जो हैं, Yes. वो भारतीय जनता पार्टी का सीक्रेट वेपन है Yeah, साहब। 100%. उन्होंने जो गेम है जितवा दिया है साहब महायुति को। सबका कहना है कि बीजेपी will get 70 seats and suddenly Sajjad Nomani has come on the field, 17 demands रखा है including banning RSS. Yes. RSS को बैन करो, हमारे जो मुसलमान भाई एक दंगे में फंसे उनको सब एक्यूज से निकाल के उनको फ्री कर दो। तो ये सब BJP is come back in contention. BJP might retain 105 and go further also. ऐसा है साहब, जो लड़की बहन योजना का जो प्रभाव पड़ा है ना, जो हल्के में ले रहे हैं कांग्रेस के लोग, एनसीपी शरद पवार के लोग और उद्धव ठाकरे सेना के लोग,
वो वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने मध्य प्रदेश में करी। मध्य प्रदेश में यार मनी इन द बैंक इज समथिंग यू कांट आर्ग्यू विद, लेट्स बी वेरी क्लियर। और सब बहनों को, महिलाओं को जो पैसा मिला है बैंक में है, मतलब यू कांट आर्ग्यू विद दैट। आई थिंक हैव वी गॉट ऑल आवर गेस्ट्स? सब गेस्ट आ गए हैं क्या हमारे? जरा दिखाएं प्लीज। कैन वी वेलकम देम इफ यू डोंट माइंड? थैंक यू सो मच। अरे साहब, विनायक अंबेकर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। विनायक अंबेकर साहब फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। विनायक अंबेकर साहब, जय सिया राम, हाउ आर यू सर? Dr. Fine, Surena sir. Malhotra of the NCP, Sharad Pawar, how are you ma'am? Great pleasure to see नमस्ते you. महाराष्ट्रातून नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और जुनारकर साहब ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अरे He is साहब, like नमस्ते। Sachin Tendulkar, नमस्ते, the सर। eternal batsman. इतने 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 दिनों के बाद आपका स्वागत करने का मौका मिल रहा है, मजा आ गया। तो सबसे पहले विनायक अंबेकर साहब, ये सजाद नोमानी साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं सर? वो बोलते हैं कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आरएसएस को बैन कर दो। ये क्या चल रहा है सर? ये प्लीज विनायक अंबेकर साहब। ये जो लोकसभा में उन्होंने किया वही चल रहा है, और लोकसभा में हम थोड़ा सा गाफिल रहे। अभी हम बिल्कुल अलर्ट है और हम उसको बटेंगे तो कटेंगे। एक है, साथ है तो शक्ति है हमारे हाथ में। ये सब एक चीजें है तो हमने सेफ है। अभी से शुरू की है जी। और उसको हम अच्छी तरह से समाज में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो हमेशा के लिए, उनका एजेंडा ये डिविजिव एजेंडा रहा है, और ये डिविजिव एजेंडा को हम अच्छी तरह से इस बार में टक्कर दे देंगे। अंबेडकर साहब, मगर आपका कहा वोट जिहाद कहना कहां तक ठीक है? फडणवीस साहब बार बार कह रहे हैं वोट जिहाद। 14 में से 48 सीट्स लोकसभा में वोट जिहाद की वजह से एक्टिवेट हो गया था। बाला साहब, थोराट साहब, शरद पवार साहब दोनों कह रहे। तो पुणे में कोई स्पेसिफिक समाज, हिंदू समाज ने एक साथ वोट कर दिया बीजेपी को, तो क्या वो उसको क्या कर धर्म युद्ध बोलेंगे? बाला साहब थोराट ने कहा अनियन फार्मर्स आपसे नाराज है, अनियन फार्मर्स अंबेडकर साहब आपसे नाराज है, तो आपके खिलाफ वोट करने वाले, तो क्या वो अनियन जिहाद हो गया? तो ये वोट जिहाद आप क्यों ऐसे पोलराइज कर रहे हो? उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है, शरद पवार साहब का कहना है बटेंगे तो कटेंगे, साथ एक है तो अच्छा यश है अपने को। ये बात करना, इसमें कोई डिविजिव बात नहीं है। उल्टा ऐसा बात है कि सब लोग साथ में आ जाओ, इकट्ठा रहो, इकट्ठा वोट करो, इतना ही बात है। अभी जो पूना में जो एक समाज कर रहा है, वो समाज कोई फतवा निकालता है क्या? वो समाज खुद की दिल से करता है। उसके समाज को किसी मंदिर से उसको कोई ऑर्डर दिया जाता है क्या? वो समाज के प्रमुख आगे आके कोई रेट लिस्ट रख रहे हैं क्या? 17 पॉइंट का लेटर दे रहे हैं क्या कि ये हमको कमिट करो तो ही हम आपको वोट देंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपने खुशी से वोट कर रहे हैं। तो पवार साहब को ये मालूम होना चाहिए कि फतवा निकाल के, निगोशिएट करके, अपने वोटों का कीमत लगा के, उसको प्राइस टैग लगा के जो वोटिंग होता है उसको वोट जिहाद कहते हैं। और जो वॉलंटरीली कोई समाज किसी पार्टी के पीछे रहता है, वैसा खुद को वो मराठा लीडर बोलते हैं, तो मराठा समाज ने इतने दिन उनके पीछे रहा ना, उनको सपोर्ट किया ना मराठा समाज ने, तो उस समय उनको चलता था। तो ऐसी बातें करना गलत है। पुणे में कोई भी समाज वॉलंटरीली किसी भी पार्टी को मतदान करे, यही तो लोकशाही है, और क्या है। लेकिन सर विनायक अंबेकर साहब, अभी अभी सडनली ये सजाद नोमानी साहब हैं कौन वैसे? वेरी फ्रेंकली सडनली ये एकदम आ जाते हैं बाहर। लोगों का तो ये कहना है, कई विशेषज्ञों का और कांग्रेस का और एनसीपी का तो ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको आगे कर दिया हो, कि पूरा हिंदू समाज जो एक होकर के बीजेपी के साथ आ जाए, कि जान करके, वैसे भी उनकी शक्ल देखिए, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, जब इस किस्म की बात करते हैं तो हिंदुओं में एक बहुत बड़ी चीज आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इस तरफ आ जाएं। सवाल ही आता नहीं है। 2024 में लोकसभा के इलेक्शन के समय में वो पुणे में आए थे। पुणे के मुस्लिम समाज ने उनकी बड़ी मीटिंग लगाई थी, जो शरद पवार कांग्रेस के लीडर भी उसमें थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है उस पार्टी में, उसका वीडियो सोशल मीडिया में है। नोमानी साहब की खुद की यूट्यूब चैनल है जिसमें उनके सभी जो वीडियोज है वो आज भी प्रेजेंट है। तो उसमें वो सीधा बोले कि मोदी जी को हटाना है, तुम्हारे सामने उम्मीदवार कौन है नहीं देखना है, हमको मोदी जी के विरुद्ध में जो इंडिया आघाड़ी खड़ी है उसको सपोर्ट करना है। ऐसा उनके पुणे में आके लेक्चर हुए और उसका
परिणाम जो है वो 14 सीटों में, जैसा फडणवीस जी ने बताया, हमने देखा हुआ है। धुलिया की जो सीट है जी। उसमें से 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा में हम 1,90,000 वोट से आगे थे। मगर जब मालेगांव सेंट्रल का वोटिंग हुआ, जिधर पूरा मुस्लिम एरिया है, तो उधर के वोट जिहाद के वजह से 1,94,000 और कुछ वोट मिले, जिस वजह से हमारा धुलिया का उम्मीदवार 4,000 वोट से हारा है। इसके लिए इसको वोट जिहाद करते हैं। हम कोई भी मतदार ने खुद के दिमाग लगाकर, खुद का चॉइस एम्प्लॉय करके उसने वोटिंग करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। आप अभी उसको एक बंधन करेंगे, मस्जिद से फतवा निकालेंगे, कोई नोमानी साहब को बेच के उनको कोई डर दिखाएंगे, तो ये गलत है। इसके लिए हम लेकिन वोट ये जिहाद पहली का बार जिक्र मैंने किया। सुना है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अंबेडकर साहब, ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस में 42 साल में मैंने कभी नहीं सुना किसी को ये बोलते हुए कि भाई अगर ये फला फला पार्टी को वोट देगा तो उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। आई थिंक ऑल पार्टी शुड कंडेम इट, इंक्लूडिंग दी एनसीपी, शरद पवार, इंक्लूडिंग द कांग्रेस। सबको ये कंडेम Yes. करना चाहिए मेरी समझ में। करेक्ट। तो डॉक्टर सुरेला मल्होत्रा, कैन यू हियर मी मैम? Yes. तो आपको ये लगता नहीं है दिस इज रॉन्ग? कैसे कोई आकर के बोल सकता है कि आपके लोगों में से अब मोदी को वोट दिया था लोगों ने लोकसभा में भी, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए पूरे समाज में? हाउ कैन एनीबडी से दैट मैम? इट्स अ ये हुक्का पानी डेमोक्रेसी। बंद होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। जी। और अदरवाइज जहां पे वोट हुआ, जिन्होंने वोट किया वो अपने मन से किया होगा वोट, so that is a different thing. If all the Muslim population wants to vote for non BJP candidate, that is fine, na? That is that they may be feeling very close to non BJP candidates. जी, Why? ma'am. Because BJP has always done hate पॉलिटिक्स। उन्होंने हमेशा मुस्लिम लोगों को तो नीचा ही दिखा हुआ है, मुस्लिम लोगों के ऊपर काफी सारे आरोप किए हुए हैं। तो उन्होंने अपने मन से फ्रीली वोट करे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, संविधान हक देता है सब लोगों को कि जो अपने मन में हो वोट देवे। वो भले वेरी रिच पर्सन हो या रास्ते के ऊपर रहने वाला पर्सन हो, सभी को फ्रीडम है अपना अपना वोट देने का। हाँ, जिस तरह से कहा जाता है वो बात अलग है। देयर शुडंट बी एनी रिलीजन शुड नॉट बी देयर इन द पॉलिटिक्स, बट जिसको जो क्लोज लगता है वो उसकी मर्जी है। डॉक्टर मल्होत्रा, जिस प्रकार से सज्जाद नोमानी जी ने कहा कि वोट जिहाद के अजीज सिपाही वोट जिहाद के अजीज सिपाही शरद पवार साहब, वोट जिहाद के अजीज सिपाही उद्धव ठाकरे साहब, वोट जिहाद के अजीज सिपाही नाना पाटोले जी, ये पहले बार कोई इसमें क्या है? कभी कभी ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी का प्लांट है। वोट जिहाद, ये वर्ड ही गलत है जी। वोट जिहाद, व्हाई ड्यूरिंग द इलेक्शन द वर्ड जिहाद शुड कम, दैट इज नॉट राइट। तो आप कैसे देखते हो? हाउ यू गोइंग टू काउंटर इट? सज्जाद नोमानी जी शरद पवार साहब का तारीफ कर रहे हैं, सज्जाद नोमानी जी नाना पाटोले जी और उद्धव ठाकरे जी का बोले कि ये हमारे अजीज सिपाही है, हमारे वोट जिहाद के। तो यू नीड टू काउंटर इट बिकॉज इट इज वर्किंग द बीजेपी वे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट नरेंद्र मोदी वांट्स एंड व्हाट देवेंद्र फडणवीस जी वांट्स। Dr. Malhotra. The message from Pawar Sahab or message from Mahavikas Aghadi is very clear that everybody has we believe in the constitution। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो constitution हम किया है, तो we are the great believers of that and we support the whatever is written in the constitution, and everybody has the freedom to vote whichever way they want to. That is what is the main crux of Mahavikas Aghadi. So, ma'am, yes. was this gentleman, whoever he is, I believe he's from the Ulema Council, was he being sarcastic when he said? अजीज सिपाही कि ये जो बोल रहे हैं कि वोट जिहाद के अजीज सिपाही ये लोग हैं, तो मतलब क्या वो व्यंग्य था, ये क्या था? मतलब मेरी समझ के बाहर है। In any event, basically we don't believe in that word jihad. Word jihad word is not correct. In any event, whichever way that word jihad, the word that is not correct. Correct. I agree with you, but the only thing is that I don't think the Muslim factor, which worked wonders for the MBA in the Lok Sabha, I don't think will work so much now in the assembly, because Muslims are concentrated in a few assembly seats. वहाँ पर हो सकता है, लेकिन बाकी जगह पे it will be a different kind of a fight. जुनेकर साहब, Yes, this actually the religion. This factor is not going to it. The factor is basically कि जनता त्रस्त है, महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। हम बार बार बोल रहे हैं कि कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आमचा,
देयर इज नो विकास। विकास के बारे में जो बोला जाता था, 15 लाख रुपए सब आते हैं और उनका भाषण सुने तो भाषण बस इट इज अगेंस्ट कांग्रेस। साहब आज राहुल गांधी साहब आए महाराष्ट्र में, वहां पर उन्होंने पोहा खाया और पोहे का तड़का उन्होंने खुद लगाया, तो लोग बड़े इंप्रेस्ड हैं उससे। उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? पोहा में जो तड़का लगता है कांदे का और बाकी सब चीजों का, उन्होंने खुद बनाया। तो जुनेकर साहब कुछ कहना चाहेंगे अपने नेता के बारे में कुछ, प्लीज जुनेकर साहब। नहीं, वो राहुल जी हमेशा भारत जोड़ो के समय भी जहां जहां गए, अलग अलग राज्यों में गए, वहां की अच्छी अच्छी चीजें के बारे में जानने की उन्होंने कोशिश की। कभी कभी अगर कोई पकाने की भी ये थी, उसमें वो भी उन्होंने कोशिश की। लालू प्रसाद यादव जी ने उनको घर पे बुला के एक साथ में उन्होंने किचन में खाना भी बनाया था, वो भी सब लोग ने देखा था। तो एक लीडर आम आदमी के साथ आम आदमी बन के काम कैसे कर सकता है और वहां उनके तक आप कैसे आसानी से पहुंच सकते हो, ये आपको देखने को मिला। जुनेकर साहब, बात यह है कि विल कम बैक टू सज्जाद नोमानी। सज्जाद नोमानी जी ने ये पूरे पेशकश नाना पाटोली जी को दिया। नाना पाटोली जी को देते वक्त उन्होंने 17 डिमांड्स रखा, उसमें आरएसएस को बैन करो, आरएसएस को बैन करो, और आगे जाके कहा कि 10% रिजर्वेशन भी चाहिए, और जो रॉयट्स एक्यूज मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको एक्यूज से मुक्त करो, फ्री देम फ्रॉम द चार्जेस। नाउ ये बहुत सीरियस चल रहा है। नाना पाटोली साहब उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट उनका डिमांड्स लेके हम लोग इस पे वर्कआउट करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता वहीं पर उनको बोलना कि ये 2-3 डिमांड्स पे कुछ नहीं कर सकते हम? हाउ डू यू सी इट? एक्सेप्ट करके क्या थोड़ा आपने गुफ अप किया है मैटर को? सर ये बिल्कुल अभी 1-2 मिनट पहले राजीव जी ने शब्द वापरा था कि ये प्लांट किया गया है क्या, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई भी मुस्लिम स्कॉलर है, अगर उसको भी कुछ बीजेपी के खिलाफ बोलना है तो उसको क्या शब्द वापरने से बीजेपी का ही फायदा होगा, उतना कॉमन सेंस कोई भी मुस्लिम स्कॉलर रखता है। तो इन्होंने जो भी वापरा, ये जो भी शब्द वापरे, जो भी डिमांड किए, वो डिमांड से मुस्लिम समाज का ही नुकसान होगा और मुस्लिम समाज वापस अलग हो जाएगा, इस प्रकार की उनकी भावना है। तो ये मैं समझ मतलब मेरे समझ में ये आ रही, ये प्लांटेड है, इसको हम उतना महत्व नहीं देते। खाली मैं इतना समझता हूं कि डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं, उनको अपनी डिमांड करने का अधिकार है, लेकिन संविधान जो डिमांड को मंजूर करता है उस पे ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विचार कर सकती है। इससे ज्यादा इसको इनकी डिमांड को महत्व देने की जरूरत नहीं है। आरएसएस बैन इज वन ऑफ द डिमांड्स। इज इट अ सीरियस बैन? इज द कांग्रेस थिंकिंग अबाउट आरएसएस बैन? क्या आपके विचारों में कभी ये आया है डिस्कशन में कि आरएसएस को बैन करना चाहिए? सर, आदरणीय सरदार पटेल जी ने बैन करने के बाद जब उनको वापस यथास्थिति जो दिया था, उसके बाद कितने साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी रही और स्टेट में भी रही, कभी भी ये मुद्दा हमने लिया नहीं, कभी भी हमने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया नहीं। अगर हमने ये किया होता तो आरएसएस को कभी बैन कर दिया होता था, बीजेपी दिखती नहीं आपको। 1975 आरएसएस के लीडर को जेल में रखा था, मैं खुद 21 दिन जेल में था। 1975 में आरएसएस पर बैन लगा था सर, 1975 में 2 बार बैन लगाया कांग्रेस ने जी, लगाया, कोई दो राय नहीं है उसमें। लेकिन जुनेकर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, अंबेडकर साहब। जुनेकर साहब ये बताएं कि जब ये चुनाव का प्रचार शुरू हुआ असेंबली का, तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, आप लोगों का जो मोमेंटम है वो जबरदस्त है। आज की तारीख में मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत विश्लेषण से मैं ये कह सकता हूं कि कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो कैंपेन है बड़ी स्लो हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बढ़िया तरीके से केंद्रित है, प्रभावशाली है। और एक और चीज आपको बता दूं, आपको बुरा लगेगा, आई एम श्योर यू विल नॉट लाइक इट, बीजेपी और आरएसएस के जितने भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त मदद कर रहे हैं, सर कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो उन्होंने खटकाया नहीं है। मैं कांग्रेस के लिए ये नहीं कह सकता, लोकसभा के दौरान आपने किया था, लेकिन अभी क्या हो गया है, आप इतने स्लो डाउन क्यों हो गए? क्या आप लोगों ने हार मान ली है? जुनेकर साहब। नहीं सर, बिल्कुल लोकसभा जैसा ही काम चालू है, लेकिन आप जिस प्रकार से आपने कहा बीजेपी खर्चा कर रही है, जिस प्रकार से हमारे खर्चा नहीं कर रही है, आज की तारीख में भी बंदी है, आज की तारीख में भी है? कांग्रेस के पास कोई पैसा नहीं प्रचार करने के लिए, तो कांग्रेस तो लोगों तक जाके जितना कर सकती है उतना प्रचार कर रही है। और जितने भी सीटें हैं तो 288 सीट में से
जैसे 158 सीटें पूरे ग्रामीण पे है, तो उसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है। जो 158 सीटें, उसमें से 125 सीट जहां सोयाबीन, कपास और आपका लोगों को सही भाव एमएसपी नहीं मिल रहा है, तो वहां का जो उनका रोष है उसका बेनिफिट हमें होने जा रहा है। सोयाबीन, कपास और काते हैं। उसके बाद जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन ने तूल पकड़ा है, जबरदस्त है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ 2014 में जिस प्रकार आपकी कैंपेन थी, बिल्कुल वैसे ही चल रही है आज की तारीख में। तो हाउ हैज दैट कम अबाउट, हाउ हैज द स्ट्रैटेजी चेंज? कुछ बताएंगे सर इसके बारे में, अंबिकर साहब प्लीज। स्ट्रैटेजी तो बीजेपी की पहले से रहती है कि कोई भी इलेक्शन को बहुत सीरियसली लिया जाता है और 2 साल पहले 3 साल पहले से उसकी प्लानिंग शुरू होती है। एक बात हम एक्सेप्ट करते हैं कि 2024 की लोकसभा इलेक्शन के दरमियान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़े जो एफर्ट्स होने थे वो एफर्ट्स कम पड़ गए। तो इस बार में उसको ध्यान में लेते हुए 6 महीने से पहले प्लानिंग पूरी कर दी थी और उसके तहत अभी काम चालू है। और आपने जैसा बोला वैसे हर घर में हम 3 बार जाए इलेक्शन से पहले और उनको वोटिंग के दिन भी बाहर निकाले, इसकी पूरी व्यवस्था हमने की है और उसको पूरा अमल में लाएंगे। और आपने जो एक बात बोली वो बहुत खास है कि कांग्रेस का जो कैंपेन है वो कैंपेन डिविजिव है। वो डिविजिव कैंपेन हमको लोकसभा के दरमियान लेट समझ में आया। उन्होंने जो फेक नैरेटिव चलाए वो हमको थोड़े से लेट समझ में आए और उन्होंने जो विदेशी ताकतों की मदद ली वो फेक नैरेटिव चलाने में, उसको भी हमको थोड़ा सा लेट समझ में आया। मगर इस वक्त हम पूरे तैयार हैं, उनके फेक नैरेटिव को पूरी अच्छी तरह से हम उत्तर दे रहे हैं। लेकिन एक चीज है, सॉरी अंबिकर साहब, अजीत दादा पवार साहब, पंकजा मुंडे जी और शरद पवार साहब, तीनों के तीनों एक चीज के ऊपर बिल्कुल सहमत हैं। एक चीज के ऊपर बिल्कुल सहमत हैं और वो क्या है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये महाराष्ट्र की भूमि में नहीं चलेगा। अजीत दादा पवार साहब भी यही कह रहे हैं, पंकजा मुंडे भी यही कह रही हैं और शरद पवार भी यही कह रहे हैं। तो सर ये तो आपके लोग हैं ना, अजीत दादा पवार और पंकजा मुंडे तो आपके हैं। वो कहते हैं कि ये कटेंगे तो बटेंगे, ये स्लोगन का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। और अजीत दादा पवार ने तो यहां तक कहा है कि ये नॉर्थ में चलता होगा, महाराष्ट्र में ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यहां पर ये सब नहीं चलता। अब आप बोलें सर, अंबिकर साहब। हर व्यक्ति को पर्सनल ओपिनियन रखने का अधिकार है। अशोक जी चौहान और अजीत दादा ये बाहर की पार्टी से आए हैं, जो पार्टी सीडो सेक्युलरिज्म के तहत इतने साल से काम कर रही थी। तो अजीत दादा के ऊपर उसका प्रभाव हो सकता है। जबकि बात हुई कि पंकजा जी मुंडे की, तो अभी देवेंद्र जी का आज का न्यूज का आप बाइट देख लीजिए। देखा। मुंडे जी को समझा गया है कि ये जो पार्टी की पॉलिसी है ये प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि एक है तो सेफ है, तो आपको पॉजिटिव बात करना है तो वो स्लोगन दीजिए। योगी जी ने दिया है तो कटेंगे तो बटेंगे, आपको वो निगेटिव लगता है तो एक है तो सेफ है, ये तो नारा आपको लगाना ही पड़ेगा। पंकजा जी ने ऐसा बोला कि मेरे को 10 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से एक क्वेश्चन ये था, खाली ये प्रेस ने क्या किया, इसको बढ़ावा दे दिया। अभी रह गया अजीत पवार जी की बात। तो अजीत पवार जी की 100 बातें गए 15 दिन में बाहर आई है और उन बातों में से आपको ये पता चल रहेगा कि शरद पवार जी ने उनको कैसा बदनाम करने का कोशिश किया। मैं तो मजाक से बोलता हूं, मुन्नी बदनाम हो गई, डार्लिंग तेरे लिए, ऐसी स्थिति आज अजीत पवार जी की है। उनके ऊपर झूठा आरोप डाला, उनके ऊपर वो जो मीटिंग में सुबह का उनका शपथ ग्रहण समारंभ हुआ उसको शरद पवार जी ने अप्रूव किया था, आखिर में जाके उन्होंने उसको डिच किया। ये सब अजीत पवार जी पब्लिकली आके बोल रहे हैं ना, तो मुन्नी बदनाम हो रही है, उसको भी जरा ध्यान दे दो। तो मुन्नी यहाँ पर कौन है और डार्लिंग कौन है सर, ये भी बता देंगे। आपको समझना चाहिए सर, मुन्नी बदनाम हो रही है तो अजीत जी बदनाम हो रहे हैं। But you know, Ambedkar साहब, there's a deliberate ploy by the BJP for polarization. Because बार-बार हर मन से जो इसके अमित शाह जी कह रहे हैं, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। इंदिरा गांधी जी स्वर्ग से वापस आ सकती है, बट
आर्टिकल 370 वापस कभी नहीं आएगा। तो ये आप किस प्रकार से आप फिर वही पोलराइजेशन के वही हर मन से वही चल रहा है। अंबेडकर साहब, इसमें कोई भी पोलराइजेशन नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसकी तहत हम चल रहे हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे से हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है 370 को हटाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। अभी उसके ऊपर जाके कांग्रेसी लोग उधर कश्मीर में जाके बोलते हैं कि हम 370 हटाएंगे, तो हम उसका जवाब तो देंगे ना सर। सर हम क्यों किस नहीं कांग्रेस जवाब ने बोला है देंगे सर? उसका? कौन से कांग्रेस नेता ने बोला है? क्योंकि मैं ढूंढता रहा लेकिन मुझे मिला नहीं। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जरूर बोला है, कांग्रेस ने नहीं बोला है सर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो प्रसंग हुए जी। उसमें कांग्रेसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला के साथ में थे या नहीं थे? सर आई डोंट थिंक दे वोटेड फॉर द रेजोल्यूशन, दे अरे abstained. ऐसा आप प्रूव करके दे दो, वो दे हैव वोटेड But फॉर they द are not opposed. रेजोल्यूशन। They've not opposed, but they've abstained from that resolution with regard to the. But that's a separate issue. All I'm saying is, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर एक ने ये बोला है। हमने कब कहा कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए? हम तो वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं कि आर्टिकल 370 गया। हर एक ने ही बोला है सर। ऑल पार्टीज आर विद यू ऑन दैट। I accept it, okay, no problem. All parties are with you on that, और आर्टिकल 370 can never come back. Let's be very clear on that. Yes. तो उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है ना। Let me go across to डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा। तो मैम जो अभी अंबेडकर साहब ने कहा मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो उसमें मुन्नी कौन है और डार्लिंग कौन है, जरा वो भी बता दें प्लीज। आपको मालूम होगा शायद। ये तो व्हाटएवर इट इज, दिस इज, ये तो मजाक करने वाली बात हो गई। एंड आई डोंट थिंक आपके जैसे शो में ऐसी सब बातें होनी चाहिए। दिस इज नॉट डन। बेसिकली क्या है, अजीत पवार भी ड्यूरिंग द इलेक्शन के कैंपेनिंग में कुछ भी बात करते रहते हैं, तो उनका तो मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही सेज एट एनी टाइम। और बेसिकली उनका रोक तो यही है कि पवार साहब की अभी उम्र हो गई, तो वाई पवार साहब इज डूइंग, और हम मतलब मतलब चाचा का रोल ज्यादा मतलब अपने योगेंद्र पवार को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका मेन रोष है कि उनके घर वाले सब योगेंद्र पवार का क्यों रोष कर रहे हैं। तो यही उनका रोष है और वो व्यक्त हो रहा है। वो लोगों के बीच में जाके भी यही बात कर रहे हैं कि पवार साहब वगैरह सब फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। तो यही सब रोष है, तो उसके लिए उनके मुंह से कुछ बातें निकलती है, तो पवार साहब भी उसके बारे में फिर बात करते हैं कि वो कैसे रोते हैं, कैसे जाके अपनी कहानी बताते हैं। ये सब घर की बात है, नोकझोंक चलती रहती है, इलेक्शन में तो चलनी चाहिए। बेसिकली अभी उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा था कि वो हमारा पवार साहब का नाम क्यों यूज करते हैं, चिन्ह क्यों यूज करते हैं, चिन्ह करते हैं तो नीचे उसमें लिखो भी कि ये चिन्ह टेम्पररी है। तो ये सब बातें चलती रहने वाली है। तो सर डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा ये बताएं, जहां तक शरद पवार जी का प्रश्न है, शरद पवार जी ने लोकसभा में 10 सीटें लड़ी, 10 सीट्स, जिसमें से 8 जीत करके आए। सो स्ट्राइक रेट वाज 80%. इट वाज द बिगेस्ट for all parties fighting in Maharashtra, which was amazing. So what do you think is going to be the strike rate now? अभी शरद पवार जी का यानी आपकी खुद की पार्टी का क्या स्ट्राइक रेट होने वाला है? तो सर स्ट्राइक रेट रहेगा उसी के मुताबिक रहना चाहिए, रहेगा स्ट्राइक रेट। हमारे यहाँ तो जो भी कैंडिडेट है सब स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, वेरी राइट। हमारे मुंबई में भी जो कैंडिडेट है स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, तो उतना तो होना चाहिए। और मैं सबको एक याद दिला दूं कि 80% स्ट्राइक रेट नहीं था, एक्चुअली वो 90% था, बट बिकॉज ऑफ ब्यूगल तुतारी के तो गूफ अप हो गया था, तो इसके लिए वो जो 1 सीट का वोट्स कम आए थे। सो वी आर वेरी पॉजिटिव। हमारे यहाँ तो पूरे ताकत से एनसीपी तो सब जगह पे अच्छी तरह से कर रही है, एनसीपी एसपी। डॉक्टर मल्होत्रा, शरद पवार साहब हर मंच पे गद्दारों को सबक सिखाओ, गद्दारों को सबक सिखाओ। आज भी एक मंच पे एक लेटर आया था और उन्होंने बोले कि गद्दारों को क्या करना चाहिए। पवार साहब ने कहा है ना, पाड़ा पाड़ा पाड़ा। छगन भुजबल साहब जहां जाए शरद, तो यू थिंक दिस गोइंग टू हैव अ बिग इंपैक्ट बिकॉज शरद पवार साहब इज रिवर्ड। लोग मानते हैं, और स्पेशली पश्चिम महाराष्ट्र बेल्ट में तो भगवान है। तो यू थिंक ऑल दीज डिट्रैक्टर्स, जो डिफेक्टर्स है, जो पवार साहब कह रहे गद्दार है, सब के सब हारने वाले हैं। हाउ डू यू सी डॉक्टर मल्होत्रा?
डेफिनेटली, बिकॉज जो लोकसभा में भी देखा, सब लोग ने देखा कि लोगों को ये गद्दारी पसंद नहीं आई थी, बिल्कुल ही पसंद नहीं आई थी। लोगों का मतलब जो गए हैं दूसरे साइड पे, लोगों का उनके ऊपर रोष था। तो ये सही बात है। तो पवार साहब भी उसमें बता रहे हैं कि डेफिनेटली ऐसे गद्दार जो है, जो मतलब एनसीपी का मतलब वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते, एनसीपी का नाम चुराते, पवार साहब का नाम चुरा के अपने मतलब अपने आप दूसरी पार्टी का नाम लेके चालू करना चाहिए था, उनको जाना ही था। तो ये ऐसे जो गद्दार है, जो चुराते हैं, सब चीजें चुराते हैं, ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली सबक सिखाना ही चाहिए। मैम यहाँ पर एक चीज है, छोटी सी बात है। हो सकता है कि आपको शायद बुरा लगे, हो सकता है कि जुनेरकर साहब को शायद और भी बुरा लगे, हो सकता है कि अंबेडकर साहब भी इस पे ऑब्जेक्शन लें, लेकिन फिर भी पूछना मेरा फर्ज है। मैम मुझको ऐसा लग रहा है, और हमको जो हम लोगों ने विश्लेषण किया अभी तक चुनाव का, वो ऐसा लग रहा है कि द बैटल विल बी बिटवीन, और द बैटल इज बिटवीन, जो लड़ाई है वो है भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे सेना एक तरफ और कांग्रेस और एनसीपी एक तरफ। क्या है कि उद्धव ठाकरे जी और अजीत दादा पवार साहब जो हैं, आई थिंक दे हैव बीन लेफ्ट बाय द वे साइड। वुड यू एग्री विद दैट मैम? कि अगर आप लोग जीत गए तो हो सकता है कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार बने जैसे 1999 में थी, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बीजेपी और शिंदे सेना की सरकार बने, और बाकी लोग जो हैं दे विल बी माइनर प्लेयर्स। डू यू एग्री विद दैट? आई डोंट थिंक सो एट दिस जंक्शन। महाविकास आघाड़ी इज टुगेदर. Mahavikas Aghadi is together making efforts. Uddhav ji is also going everywhere. Aditya Thackeray, everybody is going everywhere, and they are all together. That is one thing which Pawar Sahab has said कि Mahavikas Aghadi it's one चेहरा, एक साथ सब लोग सब एफर्ट्स कर रहे हैं, और अभी थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो सबके एफर्ट्स है इसमें, सब लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, ऑल द सब सीनियर नेता लोग, सब लोग अपना एफर्ट डाल रहे हैं। क्या बात है। जुनेरकर साहब, कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है उसमें बड़े नेता नहीं दिख रहे साहब, क्या बात है? पृथ्वीराज चौहान साहब कहीं नहीं दिख रहे, सिर्फ नाना पटोले साहब भी बड़े ठंडे हो गए हैं, अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वेडेटीवार साहब वो भी पता नहीं कहाँ हैं, मतलब किस बिल में छुपे हैं मुझे मालूम नहीं है, क्या हो गया सर? नहीं, सबको सर ऐसा है कि सबको जो जिम्मेदारियां दी गई है वो जिम्मेदारी का पालन हो रहा है, अपने अपना क्षेत्र में रहकर अपने अपनी सीट जिता के लाना, यही सबका टारगेट है। और अभी आपने जो कहा था कि बुरा लगने वाली बात, उसमें ये मैं और एक चीज जोड़ता हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार आदरणीय उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, शिवसेना का प्रचार राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जाके कर रहे हैं, तो अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग प्रचार करने के बावजूद सब इकट्ठा मन से इकट्ठा हुए, और कार्यकर्ता भी मन से इकट्ठा हुए। और आपने ये जो नारा कहा था ना कि एक है तो सेफ है, तो एक्चुअली मोदी जी ने ये नारा एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस जी के लिए कहा था कि एक है तो सेफ है, क्योंकि ये लोग तीनों में से कोई एक नहीं है। इन्होंने अपने कैंडिडेट के आसपास जो बागी कैंडिडेट खड़े किए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सीटें कम हो, उससे इनका महत्व ज्यादा बढ़े, उस प्रकार का प्लानिंग चल रहा है सर। आप भी पोलराइज कर रहे हो जुनेरकर साहब। राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान को कॉपी लेकर हर जगह जा रहे, राहुल गांधी जी दिखा रहे, और एक स्टेटमेंट राहुल गांधी जी सब जगह कर रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। मगर कहां, आई डोंट थिंक द बीजेपी इज टॉकिंग अबाउट इंपोजिंग मनुस्मृति, कहां इंपोज करने वाले हैं आप? बार बार मनुस्मृति को कहां लेके आ रहे हो जुनेरकर साहब? सर, आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था, और उसके बाद ये संविधान देश को मिला था। संविधान पालन करना नहीं चाहिए, इसी प्रकार की आरएसएस की और बीजेपी की भावना हमने कितनी बार, कितने अलग अलग इंटरव्यूज में, कितनी बार अलग अलग भाषणों में, कितने बार आर्टिकल्स में हमने देखी है, सुनी है, पढ़ी है। तो उनका विचार वही रहेगा। और आपने जो कहा कि देखो, थोड़ा भी तीखे सवाल अगर हम कोई पूछते हैं तो आप उसके ऊपर अर्बन नक्सलवाद का नाम दे देते हो। लेकिन सर, आप कलमकार, इतिहासकार, कलाकार अगर कोई सवाल पूछता है तो आप अवार्ड वापसी गैंग करके उसको बोल देते हो। न्यायाधीश कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उनकी भी आलोचना करते हैं। किसान आंदोलन करते हैं तो उनको पाकिस्तानी, खलिस्तानी, इस प्रकार से बीजेपी संबोधन करती है। तो आप एक जनतंत्र में हम आवाज कैसे उठाए, ये भी तो बोलो।
और ये कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके बोलना ये भी अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई गलत बुक गोलवलकर है साहब क्या? आपकी बात मानते हैं, आपकी बात मानते हैं, लेकिन प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नाम बताइए जिसने ये कहा हो कि देश अब मनुस्मृति से चलेगा, प्लीज, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला है और ना ही हमारी पूरी रिसर्च टीम को कहीं भी मिला है। बाकी जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं पूरे देश में उनको भी नहीं मिला है। एक नाम बता दीजिए सर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का जिसने कहा हो कि संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलेगा, बोलिए ना। सर मनुस्मृति के अंदर जिस प्रकार का भेदभाव है आज की तारीख में, गुजरात में अगर दलित आदमी गॉगल पहनता है तो वो उसकी मार खाने की आदत, बेचारे को मार पड़ती है। शादी में वो आज की तारीख में घोड़े पे बैठने का तो पुलिस का बंदोबस्त उनको लेके चलना पड़ता है। आपने बीच में देखा एक वीडियो की एक बेचारे दलित के ऊपर खड़ा रह के पेशाब कर दिया इन लोगों ने। और जो चोरी दलित लोगों की चोरी पकड़ी गई तो उनको उल्टा हैंग करके उनको मारा गया। जी but I want to ask देवेंद्र फडणवीस जी, आप he's talking about the opposition, बोले कि सेक्युलरिज्म आप बात करते हो, सेक्युलरिज्म फॉर यू इज बीइंग एंटी हिंदू, हिंदुओं को गाली दो, हिंदुइज्म को गाली दो, हिंदू के खिलाफ बात करो, हिंदुओं के राइट्स को कुचल दो तो वो सेक्युलरिज्म हो गया। तो हाउ डू यू टेक मिस्टर फडणवीस चार्ज that your party MVA का सेक्युलरिज्म इज बीइंग एंटी हिंदू, हिंदुओं को दबाओ, हिंदुओं को राइट्स को कुचलो, हिंदुओं के खिलाफ बात करो, हिंदुइज्म के खिलाफ बात करो। either of you can answer, डॉक्टर मल्होत्रा और एडवोकेट जुनेकर। तो ऐसे तो कहाँ बोला हुआ है? हम खुद हिंदू है, हम वी आर प्राउड टू बी हिंदूज एंड वी हैव नेवर सेड एनीथिंग कि हिंदुओं को दबाना चाहिए। हमारी तो सिर्फ ये बात है कि कोई भी अच्छा, सुप्रिया ताई ने अभी बहुत अच्छी बात की थी कि मराठी कोण आहे, मराठी म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये राहणारे सगळे मराठी आहेत। सुप्रिया ताई ने अभी रिसेंटली ये बात कही थी। तो हम लोग तो यही मानते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो रह रहे हैं, कोई भी कास्ट के हो, जो मुस्लिम हो, कैथलिक्स हो, हिंदू हो, एवरीबडी शुड बी एबल टू लिव एंड हैव अ ब्रीथ फ्रीली। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो एक संविधान हमें राइट देता है कि सब लोग फ्रीली जिए, सब लोग जो मन में अपने चाहिए, किसी को दूसरे को हार्म नहीं करे। कि ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में आनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और हम सेक्युलर बोलते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं। हम क्या महाराष्ट्र मराठी लोगों का क्या अपमान करते हैं क्या? ऐसे तो कई पावा है, सबने कभी नहीं किया। हम सभी महाराष्ट्र, हम सभी लोग हिंदू है, महाराष्ट्र है। आई वांट टू नो एडवोकेट जुनेकर साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने एक्यूज किया कि योर आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इज बीइंग एंटी हिंदू। नाउ हाउ डू यू आप, यानी उन्होंने एग्जांपल भी दिया, ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज, इनके पूरे राइट्स को लेके स्टेज पे रूलिंग। जुनेकर साहब सर, ये झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, मिसगाइड करो, यही पॉलिसी के ऊपर इनका प्रचार चल रहा है। आप देखो इनकी कोई भी पॉलिसी, नारे थे कि 2 करोड़ नौकरियां, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो ऐसे समय पे मुसलमानों ने एक साइड होके बीजेपी को वोट दिया था, तो क्या वो वोट जिहाद था क्या? अगर बीजेपी को वोट मिलता है तो मुसलमानों का वोट सही है, बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट मिलेगा तो वो फिर वोट जिहाद है। और बीच बीच में वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये अलग अलग प्रकार से बीच में डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी से हिसाब से ये लोग काम करते हैं। और फडणवीस जी को अभी तक उनके पार्टी में भी कोई सीरियसली ले रहा है ऐसा लगता नहीं है। आप देखिए 2014 में जितने सकारात्मक नारे थे वो 2024 में पूरे नकारात्मक नारे हो गए हैं। आप बटोगे तो कटोगे की आप बात करते हो। और ये 10 साल में इनके पास शासन रहा, प्रशासन रहा, हर प्रकार की ताकत रही। तो ये भारत में इतने अलग अलग प्रकार के धर्म है, सिर्फ हिंदू धर्म ही हमेशा खतरे में कैसे आता है? और ये 10 साल में हिंदू धर्म कैसे खतरे में आया? बाकी सब धर्मों को कोई तकलीफ कैसे नहीं हो रही? और देश में 15% आबादी जो धर्म की है, क्या आप उसको टाल के आप देश में काम कर सकते हैं क्या? हम वेलफेयर स्टेट की हमारी भूमिका है, सबसे लास्ट के आदमी को हमको मदद करनी है, ताकत देनी है। तो किस प्रकार से हम उनको अनदेखा करेंगे? जी अंबेडकर साहब, जो अभी उदाहरण दिया जुनेकर साहब ने कि कोई घोड़ी पे बैठ के जा रहा था दलित, उसको मार दिया गया कुछ, वो तो एग्जाम्पल जहां तक मैं जानता हूं वो राजस्थान में जोधपुर की है, जब आदरणीय सम्माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार थी। करेक्ट जी, वो शादी में जा रहा था दलित, मूंछों पे ताप दे के, गॉगल्स पहन के बारात लेके जा रहा था, उसको नीचे उतारा गया, मार दिया गया बच्चे को। तो ऐसा नहीं है कि
दलित विरोधी तत्व जो हैं वो पहले नहीं थे, ये आज एकदम पैदा हो गए, वो हमेशा रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक चार्ज जो लगा राहुल गांधी जी के ऊपर कि आप बार बार जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो उसमें जो मुस्लिम 74 जातियां हैं रिकग्नाइज्ड बाय मंडल साहब ने जो रिकग्नाइज करी, देयर आर 74 मुस्लिम कास्ट, उनकी जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं होती है अंबेडकर साहब? एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो सज्जन मित्र है उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया। जी। किसी भी भाजपा के नेता के दिमाग में गए 20 साल में मनुस्मृति का नाम भी नहीं है। और इनको मैं सजेशन देता हूं कि मनुस्मृति एक बहाना है और तुमको और कुछ कहना है। आप मनुस्मृति पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े रहेंगे तो पढ़ लो। उसमें कोई भी ऐसा लिखा नहीं है कि शूद्र, उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया है, जो कि वर्ण का मतलब ऐसा है आप जो काम करते हैं उसके हिसाब से आपका जाति ठहरता है। मगर हम अभी वो भी गए 20 साल में किसी भी नेता ने नहीं कहा है। दूसरी बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी आप डिबेट का रिकॉर्डिंग निकाल के दीजिए, देख लीजिए। आपने दो बात कही कि शरद पवार जी ने क्या जिक्र किया कि पुणे का एक समाज भाजपा को मतदान करता है तो वो वोट जिहाद क्यों नहीं है। ये किस समाज के ऊपर शरद पवार जी का ध्यान है? तो ये ब्राह्मण समाज के ऊपर शरद पवार जी का ध्यान है। और उनके पूरे लाइफ में उन्होंने ब्राह्मण को तकलीफ देने की जी जान से कोशिश की है। महाराष्ट्र में यदि जातियों को बांटने वाला कोई बड़ा नेता है तो वो शरद पवार जी है। और उन्होंने एक पुणे में, मैं आपको इंसिडेंट देता हूँ, पुणे में आए थे, एक फंक्शन में गए थे, उधर एक पुनेरी पगड़ी करके रहते जो कि पेशवा पहनते थे, जी। तो उन्होंने भरे प्रोग्राम में उस पगड़ी को फेंक दिया और मेरे को फुले पगड़ी करके पहनाव करके बोला। हमारे दृष्टि से सब पगड़ी एक साथ है, जो भी पवित्र है वो हमारे को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जातिवाद करने में, जाति भेद करने में और समाज को बांटने में शरद पवार जी अग्रणी है। और उनको रिप्लाई देने के लिए हमने ये नारा लाया है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा उनके ऊपर है। उन्होंने बहुत से ट्राई किए कि हर समाज में रिफ्ट पैदा हो, वो काम उन्होंने गए 30-40 साल में किया है। और फोड़ा और जोड़ा ऐसा मराठी में बोलते हैं, उस तरीके से वो काम करते आए हैं। तो भाजपा का ऐसा कोई मनसूबा नहीं है, भाजपा ने ना कभी ऐसा काम किया है। भाजपा के लिए सभी समाज एक जैसे है, हर समाज का भाजपा आदर करता है। अभी आपका क्या क्वेश्चन है वो पूछिए मुझे। जी, मेरा सवाल साहब आपसे ये है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी आखिरकार एम्बिवेलेंट क्यों है, डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस हम लोग करने वाले हैं, जो सेंसस होगा, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट 1 मिनट मैम, कि कास्ट बेस्ड सेंसस, जातीय जनगणना हम लोग करने वाले हैं और जरूर होगी, क्योंकि उसी के तहत ये हिसाब लगाया जाएगा कि वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिशियरी, लाभार्थी कौन होगा। तो एक डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते सर बीजेपी? बताएं अंबेडकर साहब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली डेमोक्रेसी में 4 ही जाति रह सकती है। एक जाति है युवा, एक जाति है महिला, तीसरी जाति है एग्रीकल्चरिस्ट शेतकरी और चौथी जाति है गरीब। हर कोई जो सुविधा दी जाती है वो मुस्लिम को दी जाती है, सिख को दी जाती है, जैन को दी जाती है, मराठा को दी जाती है, ब्राह्मण को दी जाती है। उसके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है सर। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको बेनिफिट जाता है। तो उसमें हम किसी भी मजहब के नाम से, जाति के नाम से कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते और नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूं बड़े गर्व के साथ, यूपी में ये जो लोग हैं पसमंदा मुस्लिम करके उनको ट्रीट करते हैं। आपने बहुत सही बात किया कि मुस्लिमों की जातिगत जनगणना की बात ये लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि पसमंदा कौन है? पसमंदा कन्वर्टेड मुस्लिम है। जी। और उनका जो पहले जो व्यवसाय था, जैसे लुहार है, सोनार है, चमार है, उसी नाम से वो पहचाने जाते हैं। तो मतभेद जो किया जाता है, जाति भेद जो किया जाता है, वो सभी जगह पे, आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान में आज भी जाति भेद है। मगर भारतीय जनता पार्टी की उधर सरकार रहेगी तो आपने जैसा बोला कि उनकी बारात निकलती है उसको पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं हम।
क्योंकि उन भाइयों का भी हक हम जानते हैं, उनका भी हक हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारे तरफ से कोई भी मतभेद, कोई भी जाति भेद, कोई भी वर्ण भेद, कोई भी भाषा भेद, कोई भी धर्म भेद हमारे मन में नहीं है, ना कि रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं बटोगे तो कटेंगे, So in एक effect, what are you रहेंगे really तो saying, सेफ अंबेडकर रहेंगे। साहब? अंबेडकर साहब, आप ये बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना के खिलाफ हैं आप, कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए सर? उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। कास्ट बेस्ड सेंसस की आवश्यकता नहीं, राइट? I want to ask अंबेडकर साहब अगेन, बार बार हर मंच पर आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं अंबेडकर साहब? प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गया, अमित शाह जी हो गया, आप उद्धव ठाकरे जी को बोलते हो, आप राहुल गांधी जी को सावरकर के बारे में पूछिए, आप राहुल गांधी जी को तारीफ कराइए बाला साहब ठाकरे जी का, बाला साहब ठाकरे जी का तारीफ नहीं करेंगे राहुल गांधी, तो व्हाई यू प्रॉम्प्टिंग उद्धव ठाकरे जी? तो उद्धव जी ने आपको पूछा कि मुझे कभी, उन्होंने कहा कि मैं नकली बेटा हूं, नकली संतान, कभी राहुल जी? हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट ऑफ मोदी जी एंड अमित शाह? आप खाली मोदी जी और अमित शाह का स्टेटमेंट क्यों देखते हैं? आप अपोजिशन वालों के स्टेटमेंट भी देखो ना। तो कोई भी स्टेटमेंट करेगा तो उसका जवाब तो हमको देना पड़ेगा। वो एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश करेंगे, तो हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम भी नैरेटिव सेट करने का कोशिश करेंगे। जब उद्धव जी बोलते हैं कि इनका हिंदुत्व नकली है, आपने सुना नहीं? 10 बार बोला है उन्होंने। तो हम उनको पूछते हैं कि हमारा नकली है भाई, चलो तुम उनके मुंह से लगवाओ, बाला साहब की उनके मुंह से प्रशंसा करवाओ। अभी इतना बोलने के बाद में बाला साहब का फोटो फर्स्ट टाइम ये महाविकास आघाड़ी के पोस्टर में आया है। ये क्रेडिट आप मोदी जी को देना चाहिए। बाला साहब का फोटो तो हमेशा ही होता था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पहले नहीं था। आई थिंक ऑल द आप pamphlets used to, no, no, no. 2024 के पोस्टर निकाल के देख जी, लीजिए, okay. उसमें Let's go नहीं to था। Dr. Surena Malhotra. Dr. Surena Malhotra, there is a charge against you, against शरद पवार साहब। अंबेडकर साहब ने कहा है कि सबसे ज्यादा जातियों में बांटने का काम, जातियों को बांटने का काम शरद पवार साहब ने किया। अब आप बोले प्लीज। इतने दिन अभी चल रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। टुडे ही इज गेटिंग अप एंड सेइंग दैट oh that was meant for Sharad Pawar ji. This is something new which we are hearing today. Every time what the statement that they made, that batenge to katenge, now the justification they are trying to justify, every time it's a different justification. Now today they are putting it the whole thing on But Pawar. is Sharad Pawar साहब That doesn't anti-Brahmin? mean anything at all. Is शरद पवार साहब एंटी ब्राह्मण? ब्राह्मण देश की ये आप शुरुआत नहीं है। किसी भी It is not एक्सपीरियंस ब्राह्मण आदमी देश, को द्वेष पूछ की लीजिए, शुरुआत नहीं है। ब्राह्मण द्वेष की शुरुआत No, किसने it is की? that ब्राह्मण मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, पुणे में हुआ है, पब्लिक मीटिंग में हुआ श्रेष्ठ है। है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये जो भावना है इसी को विरोध करते हैं। जहां इनफैक्ट हम लोग तो संविधान के प्रति सब लोग इक्वल है, यही हमारी भावना है। हम लोग ब्राह्मण, पेशवाई ब्राह्मण दो ज्यादा सुपीरियर है और शूद्र और जो दूसरे काम करने वाले वो गलत है। और आपने ये भी कहा मनुस्मृति की जो भी था वो आप लोग ने एजुकेशन फील्ड में भी, मतलब उसमें भी आपने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी। तो आप लोग मनुस्मृति को बढ़ावा देते हैं, ये तो बात जाहिर, डेफिनेटली इट इज नोन। ये क्या, ये कौन सी बात आप पवार साहब के बारे में बात कर रहे हैं? पवार साहब तो बहुत सेक्युलर पर्सन है, उन्होंने तो कभी ऊंच नीच तो किया ही नहीं है। ये आप गलत बात बोल रहे हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, डोंट यू थिंक राज ठाकरे जी, ये एक्यूजेशन पहले राज ठाकरे साहब ने कहा, राज ठाकरे साहब ने कहा कि शरद पवार साहब ने वो सिंबॉलिक, वो तिलक जी के टोपी, पुणे का टोपी निकालकर फुले जी के टोपी और बोले कि दिस इज द सिंबल, अब आइंदा टोपी इसी प्रकार से इसी दैट इज नॉट वो फुले जी की, क्योंकि फुले जी को तो बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। तिलक जी को नहीं मानते क्या? तो तिलक जी को मानते नहीं है क्या? तिलक जी को मानते नहीं है क्या? तिलक जी को उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? मगर शाहू, फुले, आम्बेडकर और तिलक इनको जी की तो मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में इनको मान दिए। अभी ये भी दिख रहा है, इलेक्शन इतने नजदीक आए, अब बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बात बोल रहे हैं। जो महाराष्ट्र है, शाहू, फुले, आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, इन सब का जो महाराष्ट्र है उसमें आप ये बटेंगे कटेंगे ये बात ला रहे हो, ये कैसे है? डॉक्टर मल्होत्रा, एक छोटी सी चीज है आपके लिए, जो अभी राज ठाकरे जी की बात करी ना, अंबेडकर साहब आपके आदमी एक सेकंड, एक सर वीडियो अंबेडकर साहब निकाल एक सेकंड, इट्स अ वेरी के इंपॉर्टेंट देता है कि 3 मिनट में पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मण को खत्म करूंगा। ये ऑन पेपर है, ऑन यूट्यूब में है, दिया कि नहीं?
ये बात बोलो हमें आप। क्या- ये क्या हमारे नेताओं ने बोला है क्या? आप कुछ भी बात नेताओं ने करते हैं, नहीं बोला। कोई उसको पर्सन ऐसे, उसको क्या हमारे नेताओं ने बोला क्या बोलने के लिए? कुछ भी बात कर रहे हो आप। आप डॉक्टर बोलिए तो मल्होत्रा, हमारे नेताओं के लिए बोलिए। हमारे हमारे नेताओं ने, दलित सुप्रिया ताई ने जो किया अच्छी क्या? बात बोली है गुजरात कि में कौन मराठी हमारे कौन किसी है, नेता ने कौन तो मराठी है, जो महाराष्ट्र न्याय जो आपको मराठी, लागू है, सब लोग जो वही महाराष्ट्र में न्याय रहते आपको हैं लागू है। जो मराठी है, तुम ये हमारी करेंगे पार्टी तो की राष्ट्र भावना है। का, और हम हमारी करेंगे पार्टी तो मोस्ट कैरेक्टर ढीला। सेक्युलर पार्टी, ऐसा नहीं होता मोस्ट मैडम। सेक्युलर पार्टी, ऐसे राजनीति नहीं को होते। सबको आप एक ही कुछ भी बोलना बोलोगे, होता है। इलेक्शन नजदीक आओगे तो आप कुछ भी बोलोगे। शरद पवार तो आपको सबसे बड़ी थ्रेट है, तो उनके लिए आप कुछ भी बताते रहते हैं। लेकिन मैम ये बताएं, थोड़ी है। डॉक्टर हाँ। मल्होत्रा, जी, ये sorry। बताएं, राज ठाकरे साहब ने ये कहा बार बार, अभी नहीं, दिस डज नॉट अप्लाई नाउ बिकॉज नाउ शरद पवार साहब इज चेंज। लोकसभा इलेक्शन के पहले राज ठाकरे साहब एक आरोप लगाते थे शरद पवार साहब पे कि आप हमेशा शाहू फूले अंबेडकर की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आपके मुंह से नहीं नहीं निकलता। नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी हम लोग उन्होंने statement किया। अभी भी मैंने बोला, अभी भी जब भी मैंने बोला आई जेड छत्रपति शिवाजी You did. महाराज, और I know you छत्रपति did. शिवाजी महाराज को हम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शरद- राजमाता शरद जिजाऊ पवार को जी का रिस्पेक्ट करते हैं, statement है पवार साहब कि तो महिलाओं को रिस्पेक्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को राजमाता जिजाऊ जानता को तो राजा हम लोग कहने कितना की रिस्पेक्ट करते हैं। आवश्यकता नहीं अरे है। बीजेपी ऐसा जैसी शरद पवार जी पार्टी का statement है कि उनको जानता राजा मत कहो। ऐसा अरे शरद शिवाजी पवार जी का महाराज का statement पुतले है। में आप लोग ने इतनी भ्रष्टाचार किया है, और आप क्या बात कर रहे हो? किस प्रकार कोर्ट से में आपने जाइए ना इतना मैडम, भ्रष्टाचार किया? कोर्ट में जाइए, इतने भ्रष्टाचार सारे किया है साल, तो कोर्ट में अरे जाइए। All right, इतने सारे- we really have इतने come towards the end of the साल show. I शिवाजी would like महाराज का everybody, पुतला रहा I है, would like बहुत- everyone to speak for a minute each in Marathi. 1 मिनट के लिए जरा आप मराठी में अपना मैसेज दीजिए दर्शकों को। ना एक कि चीज वास्तव में- ओके प्रदीप जी, वन पूछिए। मिनट, डॉक्टर पूछिए। उसको बोलो। मल्होत्रा, आई जस्ट लाइक यू आस्क यू, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि शरद पवार साहब कैन नॉट एक्यूज एनीबडी ऑफ ब्रेकिंग पार्टीज। शरद पवार साहब बोल नहीं सकते कि आपने एनसीपी को तोड़ दिया, फैमिली को तोड़ दिया, आपने उद्धव सेना को तोड़ दिया। बोले शरद पवार साहब भीष्म पितामह है। दैट्स व्हाट पार्टी तोड़ने के बीच पितामह है। भीष्म पितामह है पार्टी तोड़ने बोलने में। दो। तो मुझे बोलने दो। 1978 से लगातार पार्टी तोड़ते आए हैं शरद पवार मुझे साहब। बोलने Now, दो। how do you see फडणवीस साहब this statement? पवार साहब मुझे ने बोलने पार्टी दो। छोड़ी नहीं है। पवार साहब ने पार्टी वॉट एवर हिज थिंकिंग वाज, आइडियोलॉजी वाज, उन्होंने पार्टी छोड़ के अपने बलबूते पे, अपने चिन्ह पे पार्टी खड़ी की। उन्होंने दूसरों की पार्टी चुरा के दूसरे का सिंबल वगैरह चुराया नहीं है। तभी 40 अपने आमदार बलबूते को पे खड़े, लेके कांग्रेस अपने बलबूते एस पे खड़े हुए बनाया थे। और पुलोद आघाड़ी का सरकार बनाया। उस टाइम में भी पैसा बांटा था। उसके बाद में 1988 में फिर वो कांग्रेस को ज्वाइन किए। फिर 1999 में सोनिया गांधी जी के विदेशी नागरिकत्व का मुद्दा लेके उनको कांग्रेस से उन्होंने उठाया, तो उनको कांग्रेस से निकाला गया। दिल्ली में से उनके ऊपर 6 साल का बैन लगाया, कोई पार्टी पोस्ट नहीं मिली ऐसा बैन लगाया। तो महाराष्ट्र में आके उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस करके फिर से गवर्नमेंट में आ गए। लेकिन तो लेकिन विदेशी अंबेडकर साहब उन्होंने नई नागरिकत्व का पार्टी बनाई मुद्दा ना, सोनिया जी का, नई शरद पार्टी पवार बनाई ना, जी कांग्रेस का ने सिंबल तो नहीं पूरे देश के चुरा के सामने लेके गए। रिकॉर्ड है। अच्छा जुनेकर साहब, वी रियली हैव कम टू द एंड। जुनेकर साहब, कांग्रेस के लिए वोट लोग क्यों दें, आप बताइए क्यों, व्हाट फॉर, क्या किया है कांग्रेस ने अभी तक, आप ये बताइए। मराठी में बोलिए सर, 1 मिनट के लिए बस बोलिए जुनेकर साहब। काँग्रेस ही पार्टी सर्व लोकांना, सर्व जाती त्या धर्माच्या लोकांना घेऊन एकत्र घेऊन जाणारा विचार आहे, आणि तो विचार नुसता महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशामध्ये सर्व लोकांना एकत्रित करून जाणारा विचार आहे। काँग्रेस पक्ष हा महिलांसाठी विचार करतो, हा महिलांच्या कुटुंब कसं चालता येईल, एक महिला सुशिक्षित झाली तर अख्खा कुटुंब ती कशा प्रकारे चालू शकते याविषयी विचार करतो। काँग्रेस पक्ष युवांचा विचार करतो, सुशिक्षित जे रोजगार ज्यांना मिळाला पाहिजे, सुशिक्षित आहे आणि बेकार आहे त्यांच्यासाठी त्यांना काय करता येईल त्याचा विचार करतो। काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांचा विचार करतो। महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रकारची कोरडवाहू शेती आहे, जिथे सोयाबीन, जिथे कापूस, जिथे कांदा या पिकांवर ज्यांचं घर चालतं अशा गरीब शेतकऱ्यांचा विचार करतो। त्यांच्या घरात कसे पैसे जातील, त्यांना रोजगार कसा मिळेल हा विचार करतो। आणि सर्व जाती धर्माचे लोक कल्याणकारी राज्याची भूमिका घेऊन एकत्र राहिले आणि सर्वात शेवटच्या माणसाला पर्यंत जर ही आपण योजना घेऊन जाऊ शकलो तर आपण देश सुद्धा आपला मजबूत होईल, आणि देश मजबूत झाला तर आपण जगामध्ये आपलं नाव होईल।
वसुधैव कुटुंबकम आपण जे म्हणतो त्या प्रकारे त्या ह्याच्यावर आमचा पक्ष चालतो. जी, डॉक्टर मल्होत्रा, प्लीज. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू, मी अपील करून इच्छिते की तुम्ही सगळ्यांनी ही तुतारी घ्या आणि ही तुतारी वाजवा आणि आपण आपला विजयाचा बिगुल वाजवूया, तुतारी वाजवूया विजयाची. आणि ही फक्त शरद पवार आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार पक्षासाठीच नाही मी बोलत आहे, पण महाविकास आघाडी सगळ्यांसाठी हा मी वोट अपील करते की तुम्ही सगळ्यांनी जी पार्टी जी एकत्र जी महाविकास आघाडी आहे, जी लोकांसाठी विचार करणारी आघाडी आहे, जनतेसाठी विचार करणारी आघाडी आहे, जिकडे आमचे पवार साहेब आहेत जे नेहमी म्हणतात की 80% समाजसेवा करतात आणि 20% राजकारण करतात, अशा ह्या सिनियर नेत्याच्या आदेशाने ही सगळी महाविकास आघाडी एकत्र आहे, ज्यांचे विचार एवढे महत्वाचे आहेत की ते नेहमी म्हणतात की आम्ही सगळे महाविकास आघाडी, आम्ही एकत्र आहोत, आम्ही काही वेगवेगळी पार्टीज नाही आहोत. अशा ह्या नेत्यांची, अशा ह्या लोकांना महाराष्ट्र राज्य चालवायला मोका मिळालाच पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य आता कुठे देऊन ठेवलंय महाराष्ट्र आमचा, अशी ही स्थिती आहे. महाराष्ट्रामध्ये महिला सुरक्षित नाही आहेत, महाराष्ट्रामध्ये बेरोजगारी एवढी वाढली आहे. तर ह्या सगळ्यांना ह्या गोष्टीमधून आपल्याला वरती काढायचं आहे. आपण बघितलंच गेल्या वेळेला महाविकास आघाडी होती तेव्हा कोविड सारख्या भयंकर संकटातून पण कसा महाराष्ट्राला वाचवलं गेलं, कशा प्रोग्रेसिव्ह आणि सायंटिफिक वाचवलं गेलं, ना की तुम्ही टाळी वाजवा, थाळी वाजवा आणि दिवे लावा असं करून महाराष्ट्र भाकड गोष्टींमध्ये महाराष्ट्राला गुंतवून नाही ठेवलं. तर अशी ही कार्यक्षम लोकांना आपण महाराष्ट्राचं राज्य चालवायला देण्याची ही मी अपील करते. थँक्यू. आंबेडकर साहेब, प्लीज. आपल्या भाजपची कन्सेप्ट अशी आहे की डबल इंजिन सरकार. आपण जर पाहिलं असेल तर UPA काळामध्ये देशाचं अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली होती. त्याच काळामध्ये सुदैवाने 2014 ते 2019 आणि नंतर या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा डबल इंजिन सरकार जेव्हा होतं तेव्हा महाराष्ट्राचे या लोकांच्या 15 वर्षाच्या काळातले जे काही अडकलेले प्रोजेक्ट होते त्याच्यामध्ये सागरी सेतू असेल म्हणजे अटल सेतू असेल, त्याच्यानंतर समृद्धी महामार्ग असेल, वाढवण बंदर असेल, त्यानंतर अशा प्रकारचे सगळे जे प्रोजेक्ट होते ते देवेंद्रजींनी पुढे येऊन सर्व प्रोजेक्ट अंमलामध्ये आणलेले आहेत. मतदारांनी विचार केला पाहिजे की एका बाजूला बोल बच्चन आहे आणि दुसऱ्या बाजूला कार्य प्रत्यक्ष दिसतंय. आज देशभरातल्या गरिबांच्या घरामध्ये नरेंद्र मोदींनी पाणी पोचवलेलं आहे, त्यांना घर दिलेलं आहे, त्यांना उज्ज्वला गॅसद्वारे सिलेंडर दिलेला आहे, जनधन अकाउंटमधून त्यांचं बँक खातं उघडून दिलेलं आहे. काँग्रेसला जे 70 वर्षात जमलं नाही अशा 52 कोटी लोकांना बँकेपर्यंत नेऊन पोहोचवलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेसचे माजी पंतप्रधान राजीवजी गांधी यांनी जे सांगितलं होतं की दिल्लीहून 1 रुपया निघाला की 85 पैसे मधले दलाल कंसात काँग्रेसचे खात होते आणि 15 पैसे गरिबाच्या हातात जात होते. तर नरेंद्र मोदींनी केलेल्या डिजिटल इंडियामधल्या क्रांतीमुळे, DBTमुळे प्रत्येक लाभधारकाच्या खात्यामध्ये ते पैसे जात आहेत. आणि नरेंद्र मोदींनी आज ईज ऑफ लिव्हिंग, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, ईज ऑफ ट्रॅव्हल, ईज ऑफ एअर ट्रॅव्हल, ईज ऑफ रेल ट्रॅव्हल, ईज ऑफ रोड ट्रॅव्हल अशा ज्या काही सगळ्या बाजूनी सर्वांगीण प्रगती केली आहे. ती जर महाराष्ट्रामध्ये युतीचं सरकार असेल, महायुतीचं, तर डबल इंजिन आपल्याला डेव्हलपमेंट मिळेल. नरेंद्र मोदींनी पुण्यामध्ये कबूल केलेलं आहे की जर तुम्ही डबल इंजिन सरकार दिलं तर पुढच्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये 11 लाख कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट महाराष्ट्रामध्ये येणार आहे. त्यामुळे माझी सगळ्या मतदारांना विनंती आहे की त्यांनी डबल इंजिन सरकार द्यावं, महायुतीला प्रचंड बहुमताने विजयी करावं. थैंक यू सो मच आंबेडकर साहब, डॉक्टर मल्होत्रा, जुनेडकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू वेरी मच. जय सिया राम. जय महाराष्ट्र, जय सिया राम. Thank you. That was really wonderful. Fantastic. Very good. Very discussion. good debate. Very concrete. Very Yes, good yes. discussion. बिल्कुल sir. There was no abuse. There was no. I know the viewers may not have been entertained, No, but very this is really nice. informative. Very I loved informative. it. I really loved that discussion, especially Dr. Surena Malhotra, the way she talked, and Ambedkar Saab, of course, is always very, very analytical, very well prepared with whatever he does, and so is Junakar Saab. All three of them. Very good. Excellent. Very, very, very nice. And and I would say the voters have a very hard task in front of them.
They have very huge task because all are giants everywhere. Yes. You got 6 huge giants out there fighting out. Sharad Pawar Sahab, Congress ke Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi already out of the field. Here you got Narendra Modi, Amit Shah out there in the field. That's right. In सब के बीच में Raj Thakre जी भी है. In a third front, then you got Chhatrapati Sambhaji. I mean, Chhatrapati again वो भी एक third front लेके जा रहा है. तो जी. you got a big, बहुत, you know, हर It's shape going to में be very, very interesting. interesting times. It's going to be very, very interesting. लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरी सिर्फ प्रार्थना यही है और मेरी विनती यही है ऊपर वाले से कि जो भी जीते महाराष्ट्र का भला करे भाई, काम कीजिए, महाराष्ट्र के लिए कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र, अभी ये डबल इंजन की बात हो रही थी, वगैरह वगैरह इंजन की बात हो रही थी, भारत का जो असली इंजन है वो महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र प्रगति करता है तो भारत प्रगति करता है, सीधी सादी बात है। You cannot allow Maharashtra to fall behind. Let's be very clear. So Exactly. whichever government comes will have to work really and truly hard to make Maharashtra the huge force it used to be, to make India into the huge force we want it to be. You want Maharashtra to be a $1 trillion economy? Well, Maharashtra's economy will have to grow by at least 5 times for that to happen. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी बज गई सब, अगर दोबारा घंटी बजा दें तो अच्छा रहेगा, मतलब लोगों को थैंक यू सो मच। घंटी बज गई है और अपने कमेंट्स भी भेजें। प्रदीप जी और मैं फिर वापस होंगे नेशन नाउ पर, बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर कोई उल्टी सीधी बात नहीं होती। हाँ, कभी कभी लोग जो हैं बड़े उत्साहित हो जाते हैं, अपने उत्साह में न जाने क्या कुछ कह जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर यहाँ पर ईमानदार और बहुत अच्छे लोग आते हैं हम लोगों के शो में। फिलहाल देखने के लिए, सुनने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।